Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to study materials, metals and non-metals, complete chapter of class 8. Okay, let's start. Okay, this chapter is about the classification of metal and not metals and how they are different from each other on the basis of their physical properties and chemical properties. Okay, so metals and non-metals are basically categorized in this particular properties: hardness, luster, malleable, ductile, sonorous and conductivity. Okay, so metals are basically hard. Only two metals are there, sodium and potassium, which are soft and they can be cut through knife. Okay, metals are lustrous, that means वो shiny होते हैं. Shine, luster means shine, चमकते हैं. Okay, such gold, silver, copper, and they are malleable. Malleable एक property होती है metal की, by which we can convert it in the form of sheet. Right, हमारे पास कोई metal है, उसको हम पीट के या उसके ऊपर हथौड़े मार के उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability. Metals are ductile. Ductility means they can be converted in the form of wires. Right, in malleability we were converting them into sheet by beating them. Here we are going to stretch them. Okay, and they can be converted in the form of wire. This property is known as ductility. Then metal are sonorous. Metal produce ring sounds. Okay, कोई भी आपके पास अगर metal है और आप उसको बजा रहे हो, right, तो उसमें से ringing sound आएगा. Right, like मंदिर का घंटा. तो जब भी हम मंदिर के घंटे को बेल करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस. देन मेटल हैविंग द कंडक्टिविटी. राइट, जब भी हम मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता. ठीक है, एक्सेप्शंस दोनों जगह पे है, पर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टिविटी. ओके, some examples of metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. okay, most of जितने भी आपके metals हैं सब room temperature पे solid होते हैं. right, except two. I told you exception हमेशा होते हैं. here mercury and gallium are two metals जो liquid state में होते हैं at room temperature. okay, now let's move to non-metals. Non-metals are not actually hard, they are soft. Again exception is there. Diamond is a one non-metal जो hard होता है, right, and it is hardest material on the earth, but it is non-metal. okay, so non-metals are also brittle and break when struck with a hammer. हथौड़े मारोगे तो टूट जाएंगे. ठीक है, ब्रिटल. ग्लास है अगर हमारे पास और उसको हमने हैमर से स्ट्रक किया तो क्या होगा? चूरा चूरा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके. राइट, दैट इज नोन एज लस्टर. देन malleability ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, दे कैन इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेक हो जाते हैं. सो दे आर नॉट मेलेबल, उनको शीट्स में फॉर्म नहीं कर सकते. इवन सेम थिंग इज देयर, दे आर नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, they can easily be broken. So this malleability and ductility property don't exist over here. Then sonorous, right, they don't produce any type of sound. right, जैसे अभी डायमंड है, डायमंड को बजाओगे या फिर ग्लास है तो उसमें से साउंड नहीं आता. जिस टाइप का साउंड आपके मेटल्स में से आता है उस टाइप का साउंड आपके नॉन मेटल्स में नहीं आता. दे डोंट प्रोड्यूस साउंड. देन कंडक्टिविटी, दे आर पुअर कंडक्टर of heat and electricity. okay, exception graphite. Graphite is a non-metal and it is a good conductor of electricity. right, so most of the non-metal exist in 2 or 3 state of matter at room temperature. That means they can be converted into gas also. Gases such as oxygen, solids such as carbon,
One of non-metal, bromium, is a liquid at room temperature. Okay, so some examples of non-metals are phosphorus, sulfur, carbon, etc. Okay, now let's move forward. Till now we had discussed the physical appearance of the metal. Now let's move towards the chemical property of them. Okay, what happens when we react our metal with oxygen, O2? ठीक है, क्या होगा, right? Most popular example we can say is iron, right? घर में सबके आयरन होता है जो ओपनली पड़ा होता है, क्या होता है उसमें जंग लग जाती है, रस्ट. ठीक है, चलो लेट्स सी. मेटल एक्सेप्ट गोल्ड, सिल्वर, they are known as noble metal. They don't react with oxygen. Other all react with oxygen and form oxides. ठीक है, for example sodium. Sodium is vigorously, it is most means it is a metal which reacts the most with oxygen. ठीक है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इट गेट हीट. ठीक है, metal plus oxide, they form metal oxides. These are some examples. Here we are having copper reacting with oxygen making copper oxide, right? Aluminium reacting with oxygen forming aluminum oxide, magnesium forming magnesium oxide. Here we are having the chemical equation reaction of this: copper Cu reacting with oxygen forming copper oxide. Okay, so here the balanced equation is there, right? Similarly for aluminium, magnesium forming magnesium oxide, right? Generally metallic oxide are basic in nature. ठीक है, and we all know that base turns red litmus into blue and acid turns blue litmus into रेड. ओके, सो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर. ओके, नाउ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आयरन. ओके, सो रस्टिंग ऑफ आयरन. जब हम आयरन को ऐसे ही ओपनली छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, आयरन एक्चुअली दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, राइट? और ये जो केमिकल रिएक्शन है जो हो रही है, जो वो ऑक्साइड बना रहा है, उसको बोलते हैं रस्टिंग, राइट? यह हमारे पास में हमारा आयरन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, राइट? यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन है और उसके साथ में वाटर भी है, सो ये बना रहे हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. दिस इज नोन एज रस्ट. मतलब रस्टिंग के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर. ओके, सो रस्ट इज द फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्सीजन in the presence of water. Water, that means the moisture present in the air. Okay, rusting is commonly known as corrosion. Okay, and actually this rust is a alloy. जैसे स्टील हमारे आयरन का अलॉय है, वैसे ही रस्ट भी अलॉय है. ओके, और भी मेटल्स हैं जो करोजन, जिनमें करोजन होता है, बट द कॉमन इज योर आयरन. नेक्स्ट, जैसे आयरन आपका रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ, वैसे ही दूसरा मेटल भी है जिसको हम बोलते हैं कॉपर. आप लोगों के पास कॉपर वेसल्स होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, एक्चुअली दैट कॉपर इज रिएक्टिंग विथ द ऑक्सीजन और द मॉइस्चर अवेलेबल इन द एयर. Okay, when the copper vessels are exposed to moist air for the long time, okay, so it acquire a dull greenish coating. Okay, this coating is actually copper hydroxide or copper carbonate, right? Let's
see this phenomena with the help of equation. Here we are having a copper and here we are having moist air. What it moist air is? It is the combination of water, carbon dioxide and oxygen. ठीक है, ये तीनों मिला के बना रहे हैं आपका मॉइस्ट एयर. जब आपका कॉपर बहुत टाइम तक इसके अंदर रखा हुआ है मॉइस्ट एयर के अंदर, तो ये क्या बना रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड. ये कॉपर, ठीक है, this 1H 2H from here and 1O from here and 1O from here. So ये आपका बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड. और फिर आपके पास क्या बचा? आपके पास एक कॉपर बचा है, देन कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बचा है और ये कंप्लीट ऑक्सीजन बचा है. तो ये बनेगा कॉपर कार्बोनेट. राइट. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. ठीक है, मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं. सम मेटल्स लाइक सोडियम react vigorously with the water at room temperature. Okay, sodium react with some other metals also which react with the water. Okay, but sodium is the most reactive. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with the oxygen and water. Lot of heat is generated in this reaction. Let's see it with the help of equation. Here we are having sodium and water, both are reacting and they are producing sodium hydroxide, NaOH, Na from here and OH from here. right? तो क्या बचा? 2 Na बिजी हो गए, 2 ऑक्सीजन भी बिजी हो गए. This equation is balanced or not? No, this equation is not balanced. Here 2 should be there, then the equation is going to be balanced. Right? So 2 Na from here, 2 OH from here, 2 are remaining and that is going to be the hydrogen. Right? जो वेपर्स के फॉर्म में बाहर चला जाएगा. Right? Then we are having calcium Ca with water forming calcium hydroxide, 1 Ca and 2 OH. Here also we have to balance the equation by keeping this 2. right? तो 2 OH बिजी हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन रिलीज हो गया. सेम थिंग विथ द मैग्नीशियम, with water giving us magnesium hydroxide in the same way and hydrogen is released. Right? Some key points are there. Sodium, potassium and calcium react with the cold water. Right? सब metals water के साथ react कर रहे हैं पर सब का criteria अलग है. कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं. तो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ हॉट वाटर टू फॉर्म स्लाइटली soluble magnesium hydroxide. Then aluminium, zinc and iron react with steam. Lead, copper and silver and gold do not react with water. Right? ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है. अगर सिर्फ वाटर है तो इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास कॉपर वेसल्स होते हैं और कॉपर वेसल्स में रखा हुआ पानी तो कितना हेल्पफुल होता है, हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है. राइट? लेट्स सी reaction with acid. Now we are going to react our metals with the acids. So 2 examples are there. We are having hydrochloric acid and sulfuric acid. So when our zinc reacting with hydrochloric acid, it is giving us zinc chloride, this Zn and this 2 of Cl, right? ZnCl2 giving us zinc chloride and H2 जो remain है वो evaporate हो जाएगा. Again we are having zinc with sulfuric acid, तो zinc sulfate बनेगा. This Zn and this SO4 are going to combine and they will give us zinc sulfate and hydrogen will get released. Right? हम लोग कितना अभी एग्जांपल्स में देखे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है. ठीक है, ये हाइड्रोजन जो होगा वो फ्यूम्स के फॉर्म में रिलीज होगा. राइट? अगर आपने कोई मैचस्टिक बर्न किया और उसको फ्यूम्स के पास ले जाओगे तो वो पॉप साउंड जनरेट करेगा. राइट? So whenever fume is there and you are just burning a matchstick near them,
so they it is producing the pop sound, so hydrogen is getting released. Then reaction with base. Here we are having NaOH as our base. When our zinc is reacting with base NaOH, it is giving us this particular form. ठीक है. Next, an important topic of this chapter, displacement reaction. Right? Displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive metal displace less reactive metal. ठीक है. अगर मेरे पास दो मेटल्स हैं मेरी रिएक्शन के अंदर, जो मेरा ज्यादा स्पीडली रिएक्ट करने वाला मेटल है वो मेरा लेस स्पीड में रिएक्ट करने वाले मेटल को रिप्लेस कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम हैविंग मेटल ए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी. अगर मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बी को रिप्लेस कर देगा. राइट? तो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा आपका मेटल ए और कौन बच जाएगा अकेले, मेटल बी. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हियर वी आर हैविंग जिंक एंड अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच सीम्स ब्लू. राइट? तो इसमें क्या होगा, हमारा जो जिंक है ये है रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. कॉपर जो है वो है लेस रिएक्टिव. तो क्या होगा, ये जिंक कॉपर की प्लेस ले लेगा, तो हमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, और रेसिड्यूल कौन बचेगा, कॉपर. ठीक है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. अगर जिंक रिएक्टिव नहीं होगा, मीन्स जो मेटल ए है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. हियर वी आर हैविंग आयरन एंड कॉपर सल्फेट. आयरन कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा. सो वी आर हैविंग आयरन सल्फेट एंड कॉपर एज अ रेसिड्यू. नाउ वी आर हैविंग आयरन सल्फेट एंड कॉपर. सो हियर विच वन इज मोर रिएक्टिव. कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है. देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. अ मोर रिएक्टिव मेटल can replace a less reactive metal. ठीक है. But a less reactive metal cannot replace more reactive metal. ऐसे केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कॉन्फिगर नहीं होगी. ओके. सो दिस इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स जो यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है. जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. So here your potassium is having the more reactivity and platinum is having the less reactivity. ठीक है. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर ये रिएक्ट करते हैं पर बहुत कम रिएक्ट करते हैं. ठीक है. ओके. सो जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. दिस इज नोन एज एक्टिव सीरीज. ओके. और रिएक्टिविटी सीरीज. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपके नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन. राइट? सो वो डाइऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन के साथ मिलके, जैसे हमारे पास सल्फर है उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो बना सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड. वहां पे मेटल्स ऑक्साइड्स बना रहे थे. राइट? अभी यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरस डाइऑक्साइड विच इज अगेन अ नॉन मेटल, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा है. वाटर में भी आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड. वहां पे क्या ऑक्साइड्स क्या थे, दे वर बेस, और यहाँ पे क्या है, एसिड्स. राइट? तो सल्फ्यूरस एसिड टर्न योर लेटरस ब्लू लिटमस इनटू रेड. क्यों? क्योंकि ये एसिड है. Then the reaction of non-metal with water. ठीक है. Generally non-metal do not react with water. They may be very reactive in air. वो ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेंगे. जो एटमॉस्फेयर में है, जो वाटर है उसके साथ इतना नहीं करते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. ठीक है. बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है. It catch fire when it exposed in air.
ठीक है, वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके फटाफट से जलने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है, बट वहीं उसको अगर मैं वाटर में स्टोर कर दूं तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस को जब भी कंटेन करना होता है हम उसको स्टोर करते हैं वाटर के अंदर, उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ते क्योंकि वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, देन रिएक्शन विथ एसिड, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ओके, एंड बेसिस, so they react with base and that is very complex, so we will not discuss in this particular standard. Okay, then use of metal, copper, aluminum wire are used for conduction of electricity and electric equipment. Then iron wire are used to for fencing various and other purposes. Iron sheet often used for making the roof sheld. Metals are used in making the machineries, automobile, aeroplanes, trains, satellite, industry, gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. Right? आयरन की शीट के साथ में आपकी गोल्ड और सिल्वर की भी शीट्स होती हैं जो कि काफ़ी पतली होती हैं, जिसको हम स्वीट्स के ऊपर कोट करते हैं. देन नॉन मेटल्स essentially used for daily life, which all living being inhale during breathing oxygen. Non-metals used in fertilizing and enhancing the growth of plants. ठीक है, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो भी नॉन मेटल्स से ही बने हैं. नॉन मेटल्स यूज्ड इन द वाटर प्यूरिफिकेशन. कोई बता सकता है वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है? कोल. Non-metal used in the purple color solution which is applied on wounding as an antiseptic. ठीक है, एंटीसेप्टिक जैसे भी यूज करते हैं उसको. नॉन मेटल्स यूज्ड एज ऑल्सो फॉर द क्रैकर्स. जो क्रैकर्स के अंदर पाउडर होता है वो भी नॉन मेटल्स का ही होता है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.